Hello, welcome back in my lecture series, and today we discuss about our paper number 502, unit number 501, design and construction of pond farming. Why it called mandatory? Because before we uh, starting our aquaculture or fish culture, we design and construction um, for pond is better. I am Mr. Pradeep Kachia, Head, Department of Biology, Dr. Subhas Science College, Junagadh. And let's we start our basic how we can do the pond construction. So number one is the type of pond based on sources of water supply, because water is our very important source for the pond culture. Spring water pond, seepage water pond, pond fed by rainwater or runoff, pond fed by water courses, and tide fed ponds, barrage pond and diversion ponds, rosary or linked pond, and parallel pond. This is the type of pond. Different type of pond are there because of the this is because of the pond is water supply. In pond water supply is very useful. The spring water means अगर कोई छोटा सा तालाब है उसका वाटर, सिपास वाटर, पॉन्ड, रेन वाटर, रन ऑफ, तो ये सब वाटर सोर्सेज के बेसिस पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं. वी कैन सी हियर दिस इज अ पॉन्ड साइट. वी कैन सी दिस एरिया, द पॉन्ड are there, so many ponds are there, and these are the water channel here, and here also water channel are there. Okay, some of the storage pond are there, some of the cultural pond are there. These are the cultural pond with the large size and water supply. These are the channel, water channel. Okay, this is a connecting link between two ponds. Okay, here, so this is a construct. We will well plan to construct the water channel. Okay, so these are for the aquaculture. Okay, aquaculture farm. Okay, and we can see here the white spot are there, so many white spot. These are not white spot, but these are the aerator in the pond, and this is the channel for the um, feeding channel. Okay, here we can feed in different area in this pond. And number two is the general layout pond of pond farms. Pond into bracket nursery, running, holding, brood, catching, trans transition, or starting ponds. Okay, these are the nursery is the different, because in nursery so many small larvae or small babies are there. Okay, these are the rearing, holding means before we transfer to in farm, because holding pond are different. Brood is also different. These are the different type of the animal position. Water control structure like dike, channel, and sluices. Okay, and supporting facility like road, bridge. These are the farmhouse, store, workshop, culverts. These are the different type of the road facility are also there. This is the, we can see here the plan of the pond. These are the outlet, because the sometime, okay, these are the outlet because of the sometime water are very high density in the water. That's why we can remove the water. This is the inside slope dig, because of the some animal are temperature, different temperature. Here is that's why the slope is a monk, because water store in these are the pond. Inlet by channel, water supply by channel. These are the pond.
outlet shop also there. This is the road facility crest. Okay, so this is a basic of the basis of the plant. Planning of farm layout. Why? Because of the planning, because of the these are the very risky business. Preparation of farm layout plan include water control system based on physical features of the area, climatic condition. So in this sentence we can assume the before we start, अगर हम पहले एक्वाकल्चर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे वाटर कंट्रोल सिस्टम होनी चाहिए। ठीक है, अगर सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है और सडनली हम लोगों को वाटर की ज़रूरत पड़ी, सैलिनिटी मीन्स कि सी वाटर है तो उसका इवोपरेशन रेट ज़्यादा होता है, तो इवोपरेशन रेट की वजह से अगर हम लोगों को सैलिनिटी की ज़रूरत, सैलिनिटी हाई हो गई और वाटर की ज़रूरत पड़ी डाइल्यूशन के लिए, तो हमारे पास वाटर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, हम सडनली और इमरजेंसी वहाँ पे वाटर ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज रिस्की बिजनेस की वजह से वो सब एनिमल डेड हो जाते हैं। बेस्ड ऑन फिजिकल फीचर ऑफ दिस एरिया, इस एरिया भी सूटेबल होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन भी वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा जो यील्ड है वो हमको जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्म मैनेजमेंट लाइक प्रोडक्शन ऑफ fingerlings, tables, fish from either fry stage or fingerling stage. So these are this type का मैनेजमेंट भी हमारे पास होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ एरिया रिक्वायर्ड फॉर नर्सरी स्पेस, प्रोपोर्शन ऑफ नर्सरी पॉन्ड टू प्रोडक्शन पॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से पॉन्ड का नर्सरी पॉन्ड टू हमारे पास जो एक्वाकल्चर का मेन जो पॉन्ड है वहाँ पे हम स्पीसीज को ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, उस तरीके का मेकेनिज़्म होना चाहिए। हम एक एक स्पीसीज को पकड़ के ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो वहाँ से यहाँ तक नर्सरी से ये फाइनल पॉन्ड तक हम पहुँचा सकें। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ रियरिंग पॉन्ड एरिया ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ रियरिंग एंड एरिया ऑफ वर्ल्डिंग पॉन्ड्स। ठीक है, तो वो डिफरेंट स्टेज आ जाएगा उसकी एज की वजह से, उसका फीडिंग एम्पावरमेंट की वजह से। ठीक है, डिटरमाइन ऑफ शेप, साइज एंड डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, ये भी एक चीज़ है। देखो, अगर नर्सरी पॉन्ड है तो उसमें स्मॉल साइज के बेबी होंगे। ठीक है, तो उसकी साइज, शेप और डेप्थ वो सब छोटा सा होगा। बट अगर हम उसको एक्वाकल्चर के मेन फार्म में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी साइज, शेप, डेप्थ वो पॉन्ड का लार्ज हो जाएगा, क्योंकि डे बाय डे स्पीसीज की जो एज है, स्पीसीज की जो साइज है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, एडवांटेज ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पॉन्ड, ऑप्टिमम साइज ऑफ पॉन्ड ऑफ for small, medium and large scale culture operations, arrangement for adjustment of water level and salinity range of individual pond in coastal farm। देखो, हमने यहाँ अभी डिस्कस किया था कि उसकी सैलिनिटी रेंज भी हम एडजस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल फार्म की। ठीक है, तो वो लार्ज स्केल पे हम कर सकते हैं। ठीक है, this is the structure of the livestock units, fish pond, garden. These are the structure of the aquaculture pond। ठीक है, यहाँ पे हम देखा जाए तो वाटर सप्लाई चैनल भी है। देखो, हर एक पॉन्ड में यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ये सब वाटर सप्लाई वहाँ पे चालू होगी। ये लाइव स्टॉक यूनिट है, इसमें सब एनिमल्स ओके सप्लाई स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज में से हम यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद फिश पॉन्ड में, उसके बाद गार्डन में, गार्डन मीन्स के उसका मेन जो है वो उसमें। ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूस स्टोरेज, ये भी है एक स्टोरेज का ही है। ठीक है, यहाँ पे हम रोड के नियर बाई कनेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, ये कनेक्टेड रोड है। ओके, ये सर्विस रोड है। यहाँ पे कनेक्टेड रोड से हम सर्विस रोड पे इसलिए क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्ट फार्म के कनेक्शन में आ सके। तो ये बेसिक प्लान था। प्रिपरेशन ऑफ वर्क प्लान, क्वालिफिकेशन ऑफ इनपुट रिक्वायरमेंट, कैच एस्टिमेट्स
organizing supply of materials, labor and machinery, preparation of work schedule। ठीक है, तो उसमें आगे अभी हमने देखा कि उसमें एरेशन भी है, तो उसका टाइम पीरियड पे उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सब मैकेनिज्म भी वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, लेबर भी चाहिए, लेबर के विदाउट लेबर ये काम नहीं, ऑटोमेटिक ऑटोमेशन प्लान नहीं है, इसलिए लेबर की तो हर हर एक स्टेज पे ज़रूरत पड़ेगी। अप टू हम वहाँ पे क्रॉप डालते हैं और उसका आउटपुट निकालते हैं, तब तक हम लोगों को लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसका वर्क शेड्यूल भी फिक्स होगा, उसको फीडिंग किस टाइम पे देना चाहिए। ओके, फिश है तो फिश का फीडिंग किस टाइम पे देना होगा, कितनी अमाउंट में फीडिंग देना है। अगर फीड भी ज़्यादा उसके अंदर डाल दिया तो फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन की वजह से वहाँ के एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साइट सर्वे भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द कंट्रोल मैप, मार्किंग आउट ऑफ द फार्म एरिया, सर्वे instrument required, living instrument with living staff, leveling instrument with leveling staff, direct reading tachymeter with staff, theodolite, optical square, bevel protector, टैप एंड मार्केटिंग स्टाफ। ये था साइट सर्वे। यहाँ पे हम लोगों को साइट सर्वे के बाद ये सब मैनेज करना पड़ेगा। साइट सर्वे अगर हम पहले वो वहाँ पे फिजिबल है या नहीं, ठीक है, तो पहले साइट सर्वे करेंगे, उसके बाद लेवलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट विथ लेवलिंग ऑफ स्टाफ हम लोगों को वहाँ पे मिलता है नहीं, हम सी के कोस्टल एरिया में, और उसके बाद भी वहाँ पे नियर अबाउट रोड भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये सब ये है टैकोमीटर। तो डेली बाय डेली उसमें सैलिनिटी, ऑक्सीजन, वो सब काउंट करना पड़ेगा, कितना अमाउंट में है। ठीक है, वाटर डेंसिटी, वो सब मैंडेटरी करता है। ठीक है, we can see here some people of the see the pond culture or fish culture. These are the cage culture mechanism. Okay, and then is after the cage culture is directly spread to the species the large scale. Okay, so this is the channel for the feeding. You can see here the for the feeding, here the some CD are there because of the some sampling collection or other purpose. Site clearance, okay, clearance of vegetation from the site by underbrushing, weathering, filling and burning, removal of the stumps, collection and later utilization of the surface organic deposit as fertilizer or for passing big एम्बार्कमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है और क्या सेंटेंस कहना चाहता है। ठीक है, क्लियरेंस, उस साइड को भी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द पॉन्ड, उसका जो पॉन्ड है उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम श्रिम्प फार्म की बात करें तो उसमें सॉल्टिंग भी आता है। ठीक है, और उसमें जो हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम की भी उसमें लेयर करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप ऑफ उसमें चूना भी डालना पड़ता है। ठीक है, उसकी वजह से उसका सैलिनिटी भी मेंटेन रहता है। तो वो सब वहाँ पे साइड क्लियरेंस के लिए रखना पड़ता है, अदरवाइज वहाँ पे इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, 7.1 डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर कंट्रोल चैनल। उसमें water control structure, water gates and channels, leaves or perimeter delike and subsidiary delike। ओके, यहाँ पे क्या कहना कहता है, क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो वाटर गेट्स, ओके, जो मेन चैनल आया है सी के साइड से, रिवर की साइड से जो मेन चैनल आया है उसमें वाटर गेट भी होते हैं। वाटर गेट थ्रू हम डिफरेंट पॉन्ड में वाटर फिल कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल फॉर डिजाइन, calculation of water requirements, filling and draining of pond farm, use of pump
ग्रेविटेशनल एंड और टाइडल फोर्स फॉर वाटर सप्लाई एंड ड्रेनिंग। यहाँ पे जो बेसिक प्लान होता है वो ड्रेनेज और वाटर इनपुट वो दोनों के लिए होता है, ठीक है। वाटर हम अगर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और उसमें से रिमूव करना है तो भी हम आउटलेट से कर सकते हैं, और ड्रेनेज सिस्टम भी होनी चाहिए, और वहाँ पे वाटर फिल करना है तो उसके लिए वाटर चैनल भी होनी चाहिए अप टू सी वर्ड, ठीक है। बेसिक डेटा रिक्वायर्ड फॉर ऑल फार्म टोपोग्राफी, soil properties, water supply, evaporation, seepage, magnitude of flood, rainfall, storm and cyclone for coastal farm only, tidal range, river discharge, ground elevation and design datum level। इसमें दो तरीके का जो फार्मिंग पोजीशन दिया गया है उसमें से नंबर 1 है वो है सी साइड, ओके, कोस्टल एरिया, एंड सेकंड वन है ये वो रिवर साइड है, ठीक है। तो अगर कोस्टल एरिया में हम फार्म रखते हैं और प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे, तो हमको पहले क्या देखना पड़ेगा, टोपोग्राफी, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है। टोपोग्राफी मीन्स वहाँ पे अगर हम फार्म कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसका सोइल का सॉरी उसकी जो लैंड है वो किस तरीके की है, ठीक है। सॉइल प्रॉपर्टीज भी चेक करनी पड़ेगी, अगर उसमें सॉइल में पोल्यूशन है तो हम कुछ भी कर सकें, कुछ भी करते हैं तो फिर भी हमारा क्रॉप यील्ड नहीं होगा, ठीक है। वाटर सप्लाई भी वहाँ पे इजीली पहुँचनी चाहिए, अदरवाइज हम क्या करेंगे, वाटर सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो हम लोगों को वाटर लाने में कॉस्टली हो जाएगा और वहाँ पे वाटर हम इजीली नहीं पहुँचा। इवोपरेशन भी देखना पड़ेगा वहाँ पे कि उसका वेदर कंडीशन कैसा है, सीपेज, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लड, ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे फ्लड किस तरीके से आता है, ओके, उसकी वजह से हमारा फार्म डैमेज नहीं होता है ना, वो सब देखना पड़ेगा, वो सब क्राइटेरिया। रेनफॉल भी वहाँ का देखना पड़ेगा, स्ट्रॉम एंड साइक्लोन उसकी भी हमको तकेदारी रखनी पड़ेगी कि उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिक्स। तो हमको डिक्स उसमें से जो डिक्स करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, डिज़ाइन, डिटरमाइन ऑफ हाइट, टॉप विथ एंड बेस विथ ऑफ डिक्स। ये पहले हाइट डिसाइड करेंगे, उसमें से टॉप विथ और बेस वो कितना रखेंगे, स्लोप ऑफ डिक्स इन रिलेशन टू सॉइल टाइप्स वो भी हम फिक्स करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिक फाउंडेशन एज वेल एज मेजर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फाउंडेशन स्टेबिलिटी, ये सब हम पहले देखेंगे, ठीक है, वो जब पॉन्ड हमको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तब, ठीक है। उसके बाद एक्सकेवेशन ऑफ द कोर ट्रेंच एंड कोर पडिंग इन केस ऑफ अनसूटेबल सॉइल, ठीक है। तो उसमें अगर सॉइल की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसके लिए भी हम लोगों को किस तरीके से उसका डीप करना है वो भी देखना पड़ेगा, कितनी डीप करनी है, उसमें ट्रांसफ़र करना है सॉइल, वो भी सब देखना पड़ेगा। Protection and stabilizing of dig, planning of vegetation, use for plastic seed, bituminous emulsions, concentrate asbestos and timber, ये सब जो दिए गए हैं वो है वहाँ पे अगर सॉइल की हेल्थ अच्छी नहीं है और हम किस तरीके से कर सकते हैं वो सब है, इमल्सन है, प्लास्टिक सीट है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट एस्बेस्टोस एंड टिम्बर, रेनफोर्समेंट ऑफ वायर मैश, रेनफोर्समेंट, ये सब वहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। प्रोविज़न ऑफ रोडवे ऑन डिक्स, देन लेवलिंग एंड सीलिंग ऑफ पॉन्ड बॉटम। अगर हम पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर लिया तो उसका आप लेवलिंग किस तरीके से करेंगे और बॉटम किस तरीके से फिक्स करेंगे, ठीक है। लेवलिंग ऑफ पॉन्ड बॉटम प्रोवाइडिंग स्लोप टुवर्ड्स द आउटलेट इन केस ऑफ
फ्लैटलैंड, ये सब वहाँ पे टेम्परेचर, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी वेदर कैसी है, उस तरीके से हम उसका लेवलिंग करेंगे, ठीक है। सीलिंग ऑफ द पॉन्ड बॉटम टू प्रिवेंट सीपेज, मटेरियल यूज फॉर सीलिंग, क्लेलिंग, पॉलीथीन और रबर लाइंग ऑफ biological plastic. Baton is clay and chemical sealants. Construction of drainage ditch and pond bottom of facilitate drainage. ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे हम अगर उस का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, अगर हम रिवर साइड पे करते हैं, ठीक है, तो उसका ड्रेनेज अगर थोड़ी इन शॉर्ट टाइम वहाँ पे जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से हम लोगों को पॉलीथीन, रबलिंग, ग्रे बायोलॉजिकल प्लास्टिक, उन सब का यूज़ करना पड़ेगा। उसकी वजह से वाटर वहाँ पे स्टोर रहेगा। अदरवाइज वो बॉटम, अब अगर हम बॉटम में वो सब फिक्स नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो उसका वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारा जो क्रॉप है वो फैल जाएगा, ठीक है। वी कैन सी हियर दिस मशीन्स डेवलप दी पॉन्ड, ओके। सो पहले उसका लेवलिंग करेंगे, उसके बाद वहाँ पे पॉलीमर, पॉलीथीन, जो भी चीज़ डालनी है वो उसकी बॉटम पे बॉटम फिक्स करेंगे, ठीक है। Design and construction of the water gate structure. Main gates, secondary gates and tertiary gates, there are the dimension of in relation to volume of water intake and drainage. ये तीन गेट है, जो मेन गेट, सेकेंडरी एंड टर्सरी गेट, उसमें हम इनलेट भी कर सकते हैं और आउटलेट भी कर सकते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मेन गेट, टाइड स्ट्रीम, विंग वॉल in coastal farm, sidewall bed protection, seal and abutment, construction procedure, material use. So इस तरीके का फॉर्म हम सेट करेंगे कि उसकी जो यहाँ पे क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ द मेन गेट, टाइड स्ट्रीम, विंग वेल, ये जो टाइड और टाइड फ्लक्चुएशन आता है उसकी वजह से भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके का हम चैनल करेंगे। अगर वी कैन सी हियर आवर pond are there, this is the pond, we can see here the some plastic material for the covering, and here we can see our pond. So this is the water channel for the different type of pond filling, ठीक है। different type of inflow and outflow installation employing individual pond, revolving valve, ambush joint, bottom water outlet, double sluice outflow, intake pipe, ये सब जो दिया गया है यहाँ पे, ये किस तरीके से हम फॉर्म करेंगे कि उसमें से हम इनटेक और आउटटेक दोनों हम फिक्स कर सके, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वाटर की ज़रूरत है तो हम वाटर ले भी सकते हैं, और वाटर एक्स्ट्रा अमाउंट में आ गया तो उसका आउटलेट भी कर सकते हैं। उसके लिए रिवाल्डी वाल्व वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिवाल्डी वाल्व, एल्बो जॉइंट्स, बॉटम वाटर आउटलेट, डबल स्लुइस आउटफ्लो, इनलेट पाइप, sluice and monks. Type of pipes used: either were concentrate, iron, polythene, PVC, etc. Installation of outflow pipe or construction of spillway located in the size of spillway, ठीक है। Second point is the construction of the diversion channel for diversion of excess or फ्लड वाटर, ठीक है। उसके लिए भी वहाँ पे इस तरीके से फार्म कंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि फ्लड वाटर आए तो वो डाइवर्जन हो जाए वहाँ पे। डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर यूज फॉर द वाटर कंट्रोल स्ट्रक्चर, वायर, स्क्रीन, नाइलॉन, मैश बैग, सैंड और ग्रेवल, सैंड फाइबर, एक्सेट्रा। वाई
because of the some water channel through some predators also come. So if think predator can come, then uh, so many our crop is so many um, fish or prawns eat by the predator. That's why the different type of the filter are there, nylon filter, wire screen, ठीक है, sand bags. That's right. Pump used in the fish farm, different type of the pump used because of the some water uh, changing or aerator. This type of the pump are there. Type of pump: piston, impeller, water ram, Archimedean screw, lift delivery, sludge, and submersible pump, freshwater and saltwater pump, drying units, electric, diesel, and petrol, their horsepower and delivery rates, suction and delivery pipes, foot valves. This maintenance of pump and simple repairs possible. Use the wind power and other expensive sources of the power for pumping. यहाँ पे different type of जो pump दिए गए हैं वो भी pump useful है. ओके, और विंड पावर की वजह से भी हम वहाँ पे चला सकते हैं. ठीक है, दिस आर द वी कैन सी हियर दी दिस द aerator because of the water can continuously, these are the floated aerator, and water can supply or some environment oxygen is dissolved in the pond. Then machinery used in farm construction: earth moving machinery, rotors, bulldozers, excavators, drag lines, clamp digger, suction draggers, cleaver. These are the tractor, dumper, tip, trucks, and sand pumps. This type of the different type of the machinery we can use in farm construction: earth packing machinery, rubber roller, vibrator roller, rod roller, diesel ram, and sheep foot roller. These are the for the inner side of the pond. Construction machinery: electric, diesel, and petrol, concentrate mixture, vibrator driving rings, and conveyor belt. Power, working capacity, fuel consumption, and running cost of the different type of the machinery. High capital cost, possibly of the concentrate, high period higher copper wire outship. Okay, this type of the machinery we can use in the farm. And number 10 is the economic aspect of the pond farm construction practical. Survey of potential site using the land survey instrument, preparation of counter map, calculation of earthwork, design of sluice, construction of typical pond farm, cost estimated for the construction and selected farm. सो यहाँ पे हम लोगों को इकोनॉमिकली भी वो फार्म है वो इकोनॉमिकली प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ सर्वे हम पहले करते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मैप प्रिपेयर करते हैं, वो सब भी हमको इकोनॉमिकली बेनिफिट्स हो इस तरीके से करना पड़ेगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. दिस इज द बेसिक idea or how to prepare the pond culture. Okay, thank you. I hope you all are enjoy, and if you like this lecture, like, share, and subscribe my channel. Okay, thank you so much. We can see one more time our points: economic aspect of the pond farming construction practical. Okay, machinery use in construction, these are the machinery. Pump use in fish farm. Okay, these are the uh, design of the water gates, how to design. These are the base preparing, these are the different we can see here. Okay, leveling of base, design and construction of digs
how we can dig constructed basic of data required. These are design control structure, water control structure, basic principle उसका site clearance किस तरीके से होना चाहिए, this is the site, okay, site survey भी, okay, and then preparation of work plan, this is the basic planning for farm layout, उसके लिए this type of plan, general layout of the pond farming, उसके लिए ये सब जनरल लेआउट, ठीक है। उसके बाद ये सब पॉन्ड फार्मिंग है, ठीक है। टाइप ऑफ पॉन्ड बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द वाटर सप्लाई, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, ओके।